مفتی صاحب میں ایک بات آپ سے کے ساتھ شیئر کروں. جی جی میں نے ناز سسٹر کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی بتایا ابھی کہ دیکھیں یہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں ہمیں ڈر ہے، اصل پاکستان میں ہمیں واپس بھیجا یہاں سے تو کیس پاس نہ ہوا تو جج صاحب ہم مر جائیں گے، ڈوب جائیں گے، رڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے. اور سٹوریاں بڑی بڑی دردناک کہ ہمیں مارا، میری ماں کو مارا، میرے بیٹے کو مارا، چھوٹے بچے کو مولوی نے مارا، مولوی گولی چلا رہا تھا، ہم بچ کے ادھر سے دوڑ کے یہاں پہنچ گئے ہیں. جو بھی اس طرح کے تو ہمیں واپس نہ بھیجنا. اور اگر 500 قادیانی ملانگ نے یہ کیس کیا ہو اور جس دن کیس پاس ہوا ان کی فائلیں نکال لیں، وہ قادیانی ملنگ اسی ایریے میں جا کے ٹکٹ کروا کے سب سے پہلے تو وہ ملنگنی سے شادی کرتا ہے، کوئی مامے چاچے کی، اس کی ملنگنی پہلے فون پہ گھیری ہوتی ہے اسی گاؤں میں جا کے. جناب ڈانس ہو رہا ہے، گلے میں ہار ہے، کیونکہ یہاں سے پیسے پوسے ویلفیئر کے بینیفٹ کے اکٹھے کر کے وہ بیٹھا ہوتا ہے 2-4 سال. وہاں جا کے اسی ایریے میں جہاں مولوی نے اس کو مار دینی تھی گولی، کان میں بھی، ناک میں بھی، سر میں بھی، وہاں جا کے جناب مولوی وہ وہاں پہ شادی کر رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے، مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جن کو وہ بولتا ہے کہ میرے دشمن ہیں، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. وہاں دکان بناتا ہے، زمین لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، چھٹیاں گزارتا ہے، ہر سال جاتا ہے. 500 بندوں نے سیفٹی کا کیس کیا ہوا ہے، 500 بندے اسی ایریے میں پہنچ جائیں تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اس طرح کی جھوٹی جماعت اور بدکاروں کا ٹولہ نام ہے جی پیسفل جماعت. شرم نہیں آتی ہے. اچھا جی سوری میں تھوڑا سا جا رہا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جی. جی جی تو مالک اوکے چل اللہ پاک جی آپ کو اجر دے. جناب چودھری صاحب ہماری دعا ہے آپ کو. تو اوکے ملک جی، اللہ حافظ. مفتی صاحب تسا نے کنے قادیانی مارے نے ذرا دسو نا. میں تے بس کوئی شمار نہیں یہ ہے علمی طور تے نا. ویسے تے میں کدی مکھی تک شاید نہ ماری ہوئے فزیکلی. حوالہ لایا جی ایک حوالہ روحانی خزائن جلد 21 تے صفحہ 354 دا لایا میں. ہاں ہاں ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ. جی کی لکھے ہے جی. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ وہی دا دروازہ بند ہو گیا. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਤਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੜਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. جلد 21 صفحہ 324 354 ذرا ਕੱਢ ਕੇ ਪੜੋ. 354 کتوں پڑھنا ہے جی. سٹارٹ تو ہی پڑھ دے استاد جی. عزت کیا مرتبت کیا تاثیر اور کیا قوت قدسیہ اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعویٰ کرنے والے صرف اندھے اور نابینا ہو اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات اور مخاطبات سے ان کو آنکھیں نہ کھولے. یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک ان کی کوئی بھی امید نہیں. صرف قصوں کی پوجا کرو. ہاں یہ وہ مرزا جونیئر جیل میں نہیں ایک لفظ بولتا کہانیاں. یہ اصل میں وہ مرزا قادیانی سے اس نے یہ لفظ لیا ہے. بالکل بالکل مرزا قادیانی اصل میں کہتا تھا یہ کہانیاں صرف بالکل ایسا قصوں ہی. کی پوجا کرو. پس کیا ایسا کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی تعلق نہیں لگتا. جو کچھ ہے قصے ہیں. یہ دیکھیں نا کہانیاں. ہاں بالکل بالکل. اور کوئی اگرچہ ان کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے، ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا.
میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہیں. دیکھیں وہ دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں نا. بالکل وہ بالکل. کہتے ہیں میں مطلب بیزار ہوں دین اسلام سے. ٹھیک ہے. تو قادیانی آج کس منہ سے مطلب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ آگے پڑھیں آگے مرزا آگے بھی پڑھیں. قادیانی تو جو ہے وہ دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے. اور چھتر میں اللہ ایسے وسلم. مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ ہاں جی رحمانی. ہاں جی. وہ کہتا ہے اسلام جو ہے نا یہ ایک شیطانی مذہب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا اور اندھا ہی مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے. مگر میں ساتھ ہی خدائے کریم اور رحیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام ایسا مذہب نہیں. یعنی یہ وہ والا اسلام ہے کہ جو مرزا قادیانی جس کا کریٹر ہے. بالکل یہ بات. یہ مرزا قادیانی جس اسلام کا کریٹر ہے یعنی اس نے تو واضح طور پہ وہ لکھا ہے نا. کہتا ہے کہ بالکل. ان مسلمانوں کا اسلام کوئی اور میرا اسلام کوئی اور ہے. واضح یہ طور پہ چیز وہ دلیل بھی ہم نے کئی دفعہ دی ہے. وہ اور یہاں پہ الفضل جو کہہ اخبار رہا کے ہے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ تو روحانی خزان میں بالکل ڈائریکٹ کہہ رہا ابھی اس سے تو ہاں انکار بھی جی. نہیں کر سکتا. اسلام میں ایسا مذہب نہیں بلکہ دنیا میں صرف اسلام ہی یہ خوبی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بشرط سچی اور کامل اتباع ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمات الہیہ سے مشرف کرتا ہے. اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء ربانی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اور اس حدیث میں بھی علماء ربانی کو ایک طرف امتی کہا اور دوسری طرف نبیوں سے مشابہت دی. اب یہ جو قادیانی کہتے ہیں جناب کہ علماء آسمان کے نیچے بندر سور خنزیر یہ اور دوسری طرف مرزا قادیانی خود اس حدیث کو وہ کوٹ کر رہا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں تو یہ اصل میں مرزا قادیانی کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ اس کے ایک منہ کے اندر دو زبانیں تھیں. وہ بیک وقت ایک چیز کا اقرار بھی کرتا ہے اور اسی چیز کا انکار بھی کرتا ہے. اور مفتی صاحب اس نے اس بندے کے لیے کیا کہا ہوا ہے کہ جس کے دل سے دو مختلف باتیں نکلتی ہیں تو اس کے لیے اس نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں کہتا ہے کہ وہ پھر ریفرنس مجھے کھولنے پڑیں گے. بہرحال مفہوم یہی ہے کہ جھوٹ بولنا اور نہیں السلام علیکم. اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایک دل سے دو متناقض جب ایک بات باتیں میں نہیں کوئی نکل سکتی. جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. جی مفتی صاحب جلد 23 ہے صفحہ 221 کے اوپر. ایک اور بھی کہتا ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی. اس طریق سے یا تو بندہ کیا نام ہے منافق ہوتا ہے اور یا جھوٹا. جی ہاں اس قسم کی باتیں تناقض کے حوالے سے بھی اس کی کافی ہیں. جی متناقض مختلف دو باتیں نہیں نکل سکتی. بات کر سکتے ہیں. تناقض کلام کے حوالے سے یہ روحانی خزائن جلد 10 ہے صفحہ 143 کے اوپر وہ کہتا ہے ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق. پھر وہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 191 کے اوپر مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے. پھر روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 کے اوپر کہتا ہے مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں اس نے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں. ایک جگہ اگر وہ کہتے ہیں نا نبوت کا کی دروازہ کھلا ہوا ہے تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند بھی ہے.
ایک طرف وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو یہ اصل میں اس کے تناقضات آپ کو بڑے ملیں گے بے شمار. اگر کوئی قادیانی ہم سے دلائل طلب کرے گا تو وہ پھر ہم دلائل بھی دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جی قاری صاحب میرے ایک دو سوال ہے، جواب دے سکتے ہیں؟ جی فرمائیں. اچھا سر، سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ سوال کریں، آپ انٹرویو لینے آئے ہیں؟ نہیں نہیں سر، میں انٹرویو نہیں لے رہا، میں سوال میں ہی آپ کا جواب دوں گا کریں سوال. کہ ہاں جی سر، آپ بات سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل مسلمانوں میں فرقے بازی بنی ہوئی ہے، جیسے سنی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، اس چیز کا کوئی ذکر تو نہیں ہے. تو پھر ہم سب اس چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہ پڑھیں. آپ کس نے کہا آپ کو پڑھیں؟ نہیں پڑھے ہوئے ہیں نا لوگ، پڑھے ہوئے. میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں نا. جو سنی پڑھا ہوا وہابی ہے، بریلوی میں اس جو چیز کو پڑھا مانتا ہوا ہے نہیں، میں اس کو جا مسلمان کے ہوں. آپ جب بتائیے، اس سے پوچھیے کیوں پڑھے ہو. میں تو نہیں پڑھا. نہیں نہیں سر، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جیسے بھائی کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ جواب دے پڑھے دو. ہوئے ہیں کیسا تھوڑا. جواب چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں پڑھا. احسن جو پڑھا ہوا ہے جا کے اس سے احسن یہ پوچھے جو جا ساتھ کیوں پڑھے ہو بھائی. یہ جو ساتھ پپو ملک بیٹھا ہوا آپ پڑا ہوا ہے. بھائی جان نہیں لالا جی، یہ بھی نہیں پڑھے ہوئے، پپو ملک بھائی نہیں پڑھے ہوئے. اب السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت ہے؟ وعلیکم. بھائی جذباتی ہو رہے ہیں. بھائی جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا تو یہ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کی عادت ہے، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا. نہیں نہیں دیکھیں، یہ ہمارے تو اس چیز میں غصے کو تو بڑا غلط سمجھا گیا ہے اس چیز کو. تو باقی ہمیں اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ آپ کو اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میرا بس یہی سوال تھا، ایک دو سوال تھے، باقی مجھے سب کے جواب مل گئے. احسن ندوی صاحب، آپ سے کوشچن کرنا تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے، تو آپ کون ہیں؟ پہلے آپ اپنا ذرا تعارف کرائیے گا. آپ کس فرقے سے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں؟ جزاک اللہ. سر میں الحمدللہ مسلمان ہوں. میں کسی بھی فرقے بازی کو نہیں مانتا کہ وہابی، سنی، شیعہ، یہ وہ. دیکھیں ہم سب ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. ہم اگر قرآن پاک کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم سچے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں. ہمیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح کی نہ سوچ رکھیں کہ تو کون ہے، وہابی ہے، تو کون ہے شیعہ میں، تو کون ہے اور میں بریلوی ہیں، دیوبندی، جو بھی ہیں. یہ چیز ہمارے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا آپ کو میں صرف مشورہ ہے، ایک آپ مرزا انجینئر کو سنا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائی کو سنتا ہوں، میں کسی اور مولوی کو نہیں سنتا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ فوراً موقع پہ دلیل دیتا ہے انسان کو. اور ماشاءاللہ اس بندے نے جتنے بندے مسلمان کیے ہیں، میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. انڈیا والوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ جی آپ ہمارے یہاں پر پیس ٹی وی پہ بھائی ڈاکٹر ویڈیو نہیں، ذاکر آپ نائک اہل حدیث ہے. نہیں حدیث ہے. آپ جا کے دیکھیں. ایک اس کے پاس نا ہندو آیا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال بس بتا رہا ہوں، بات بتا رہا بھائی ہوں، وہ ٹھیک ہے. اس اہل کے پاس حدیث ایک ہے، ہندو ہمیں آیا. پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. بات سنیں، ہم اسے جو مرضی کہتے جو وہ ہماری اپنی سر ہم درد ہے. آپ اس نے کی نا کوئی ایک جھوٹی بار بات ہندو کیوں ہے، سنیں؟ آپ جھوٹی دیکھیں بات کر رہے ہیں، وہ اہل میری بات حدیث ہے، ہمیں پتہ ہے. میری ایک چھوٹی سی بات سن لے. وہ اس کے پاس ایک ہندو آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے دو دوست ہیں، دونوں مسلمان ہیں، مگر دونوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے. ایک سنی اور ایک شیعہ. یہ انڈیا کی میں بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس نے کہا، اس نے قرآن پاک پکڑا، اس نے کہا یہ قرآن پاک ہے، اس میں نہ تو شیعہ ہے اور نہ ہی مہوش سنی ہے. آپ موجود ہیں؟ مہوش جی موجود ہیں مفتی صاحب، جو ہوسٹ حکم ہیں؟ کریں مفتی صاحب. میں ماڈریٹر ہوں، حکم کریں. بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ ان کی براڈ کے اوپر آیا ہوں، میں تو صرف قادیانیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. تو اگر مجھے نہیں پتا آپ کا کیا مزاج ہے یا کیا. ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مجھے نہیں تھا پتا. میں صاحب ہم آپ کے نوکر ہیں، اگر آپ قادیانیوں کے خلاف بات کریں گے. جزاک اللہ.
ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। जी जी, मैं हुक्म करें, मैं मॉडरेटर हूँ, आप बात करें। ठीक हो गया। तो मैं यही अर्ज कर रहा था, मेरा मजाज तो आप वाकिफ हैं अच्छे तरीके से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं फिर ऐसी ब्राडों पर फिर बैठना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे मौजू से रिलेटेड नहीं ना होती। नहीं तो नहीं, ये वो मौजू से आउट ऑफ सब्जेक्ट जब होगी कोई बातें गुफ्तगू होगी तो वो फिर मेरे तो नहीं बैठने नहीं, का कोई फायदा तो ना हुआ। मैं उस्ताद जी आपको बताता हूँ, महविश को पता ही नहीं है, वो ये समझ रही है कि ये हमारे ही लोग ऊपर आ रहे हैं आपकी वजह से ना, उसको नहीं पता था। नहीं, ये हमारे ही बन के ही सारे आते हैं, एथीस्ट धैर्य लोग हैं, और ये पप्पू भी धैर्य है, तो ये फिर वो ड्रामेबाजियां तो करते ही सर हैं। मैं आपका नौकर हूँ, आपका नौकर हूँ सर, आपका जी नौकर हूँ। जी जी, कोई बात कोई बात। कादियानियत का जो मौजू है या एथीइज्म के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो आप लोगों के इतराजात हैं वो करें, ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देंगे हम मुसलमान क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो मुसलमानों से हम डिस्कस करेंगे। वो आप लोग ना ही तो ये सवाल करने की अहलियत रखते हैं और ना ही मतलब, हाँ जो आपके इतराजात है वो करें कि हमारा ये इतराज है एज एक एथीइस्ट, एज ए कादियानी, एज ए गैर मुस्लिम, हमारा ये इतराज है, ठीक है। खुल के आके सामने खेलें, हमें पता चले कौन क्या है। रही बात ये कि वो विचली गल करना ऐसे कुन्ने मुन्ने होके, तो वो नहीं भाई, वो अपना मजाज ही नहीं है। हम तो खुल के खेलने के आदी हैं, कोई मुनाफकत नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, जो होता है वो आमने सामने बिल्कुल सीना ठोक के बात करते हैं। पप्पू मलिक साहब, आपने वो वीडियो मौजूदगी देखी थी, वो लाले जो जी कादियानियों के आजाद चमक रहे थे वजू से, वो वीडियो देखी थी आपने? सर जी भजन मुझे वो तो नहीं मिली, लेकिन आज इंजीनियर साहब की एक वीडियो आई है जो आप मिनी गार्ड 2 हफ्ते से रो रहे थे ना, उसने उसका तफसीली जायजा बयान किया है। अगर मुफ्ती साहब इजाज़त देंगे तो मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। जज़ाकल्लाह। नहीं, पहले मुझे अज़ाए वजू वाली बात बताएं, वो नहीं मिली? सर उसने गलत बात की थी, मैं आपके साथ हूँ, उसने गलत बात की थी, मैंने ना, तो सच्ची बात है, ना मैंने कोई खास ढूंढी है, ना मुझे टाइम मिला, ना मुझे याद थी, मैं वो भी ढूंढूंगा, उस पर भी बात करेंगे। आप पप्पू साहब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट है, फॉलोवर है? जी जी, मैं उसका फॉलोअर तो नहीं कह सकते, उसकी मैं बातें वीडियो सुनता हूँ और मुझे बड़ी पसंद आती हैं सर। नहीं मतलब क्या है, मतलब उसको समझते क्या है, फॉलोवर नहीं हूँ मैं उसको वलीउल्लाह सर, वलीउल्लाह समझता हूँ। नहीं कहना है वलीउल्लाह समझते हैं। जी जी, वलीउल्लाह वो कैसे जी? अच्छा, वलीउल्लाह की ये अलामतें कुछ हैं, वो जरा देख लीजिएगा कि क्या इन अलामतों को देख के आपने इसको वलीउल्लाह मानना है, जरा सुनिएगा। अच्छा, इसकी कही हुई वलीउल्लाह की कही हुई बातों पे अमल भी करते हैं कि नहीं आप लोग? मुफ्ती साहब कोशिश होती है, अब ज़्यादा गुनहगार लोग हैं, कोशिश होती है तो जितना हो सकता है, बाकी अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन। नहीं मतलब कभी अमल किया है कि नहीं इसकी बातों के ऊपर? मुफ्ती साहब सबसे पहले अमल ये किया, फिरकों से निकल के आज़ाद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा अमल मेरे ये सवाल है। का जवाब तो नहीं दिया आपने, हाँ या ना में ये जवाब है। जी कोशिश करते हैं, सारी बातें नहीं, लेकिन जो सही लगती है, कुछ गलत बातें करते हैं। कुछ अमल करते हैं आप? जी जी, कुछ जो बात गलत करेगा वो तो हम नहीं सुनेंगे उसकी। जी अच्छा, गलत बातें भी उसने कुछ की हैं? गलत बातें से मुराद जो वो अपनी सोच बयान करता है ना, वो हमारे मतलब नज़दीक गलत गलत है। बातें भी उसने देखे ना, चोर यही जी, जी, सर, की हैं। ड्रामा था, की हैं सर, उससे गलत बात की हैं। यही ड्रामा, मर्जियों का भी यही ड्रामा, चोर दरवाजा रखेंगे, यानी कादियानियों का भी, मिर्जे कादियानी का भी यही है। मतलब वो यस और नो वाला साहब है, यस भी रखी है उसने। मुफ्ती साहब हम ये नहीं ना समझते, अल्लाह उसके मुंह से बोलता है, हम ये नहीं समझते। बात तो करने देना। यस भी रखा हुआ है, नो भी रखा हुआ है, सफेद भी वहीं मिल जाएगा, स्याह भी वहीं पे मिल जाएगा, हाँ भी मिल जाएगी, ना भी मिल जाएगी। ये चोर दरवाजे, भागने का रास्ता एक मौजूद रखते हैं आप लोग, और मर्जियों का भी यही ड्रामा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना भगाए तो हम नहीं भागते हैं इंशाल्लाह ताला। आप पूछें, आपने क्या पूछ रहे हैं? जी बोलने देंगे तो कुछ मैं फिर पूछूंगा, अभी तो मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। ये मर्जियों का भी यही ड्रामा है। अब ये देखे, मैं पूछ रहा हूं कि भाई उसकी बातों को मानते हैं कि नहीं, और नहीं असल में जो अच्छी बात है उसको मान लेते हैं, जो बुरी बात है छोड़ देते हैं। अब ये एक चोर दरवाजा है, मतलब ये कि जो भी बात अब मैं पूछूंगा ना, इन्होंने कहना ये बुरी बात है, हम नहीं इस पर अमल करते।
ये है चोर दरवाजा, ये गो और ये मैदान। अभी मैं इनसे एक वीडियो चला के पूछता हूं और अभी सामने ये सुनिएगा, पप्पू साहब, मरज़ई साहब, तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 रोटियां मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहे कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, यह वो जवाब है जो महमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। जी पप्पू मरज़ई साहब, बताइए, आप इसको मानते हैं कि इनकार करते हैं? देखिए पहले हाँ या ना करने, अच्छा सर, सर मुझे मुफ्ती साहब रिक्वेस्ट है, मुझे मरज़ई ना बोले, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आप इस वीडियो को मानते हैं कि इनकार करते हैं? उसने सबसे पहले बोला है अल्लाह और रसूल इस बारे में कुछ नहीं कहते। देखिए यही तो मसला है। मैं नहीं मानता, मैं इसकी बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता, इससे अपनी बात की। बस ठीक हो गया, बस जवाब मिल गया, बस माइक म्यूट कर ले। ये है, देख लें, ये गो और ये मैदान। मैंने अभी एक चीज, पूरी देग में से एक दाना भी चख लिया जाए, समझ आ जाती दाल कैसी है, देग कैसी है। अब मैं जो भी वीडियो पेश करूंगा, इन्होंने कहना नहीं मैं नहीं से मानता। अगर ये पप्पू साहब कहेंगे, मैं एक और वीडियो चला देता हूं। इन्होंने प्लीज चलाएं सर, चलाएं। मैं शायद मान भी जाऊं, चलाएं। नहीं मानता, चले अगली वीडियो चला लेते हैं। अज़ाए वज़ू वाली चलाएं। नहीं, एक मिनट और चला लेते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए, इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी, सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे, फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट, सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एक। जी पप्पू साहब, आप इस को मानते हैं कि नहीं, इस वीडियो को? मुफ्ती साहब मैं इसको मानता हूँ जी। मानते हैं, जबरदस्त हो गया। तो इस पे अमल भी है कि नहीं आपका? ये भी पूछेंगे किस तरह मानता हूँ, वो ठीक है, जिरा करते हैं, हम दोनों बैठ के जिरा करते हैं। अच्छा, इस पर अमल भी है कि नहीं आपका? साहब जब नौबत आएगी उस टाइम की तो इंशाल्लाह अमल भी करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं भाई, अभी आप कह रहे मैं मानता हूँ, बात तो यही थी। आप कह रहे थे कि उसकी जो अच्छी चीज है उसको मैं मानता हूँ और उस पर मेरा अमल है। आप मानते हैं और अमल नहीं है। मुफ्ती साहब देखें, उसने बच्चों का एजुकेशन का बोला है ना, ठीक है, जब बच्चे होंगे उनकी एज वो होगी तो उनको सिखाएंगे, बताएंगे। जी स्टेप ना भाई, स्टेप बाय स्टेप जी मुफ्ती साहब ऐसा करके आगे बढ़ते जाएंगे हम। जी पहले तो आप कह रहे मैं इसको मानता हूँ, ठीक हो गया। अब आप इस पर अमल है कि नहीं, आप कह रहे नहीं।
ये क्या माजरा है? मानते हैं अमल नहीं मुफ्ती है। साहब बच्चे अभी उस एज के पहुंचे नहीं है, बच्चे अभी लेट से हुए नहीं है, तो फिर हम कैसे अमल करें? तो सही बच्चों के बारे में बात मानते कर तो रहे हैं। है ना, चलो ठीक हो जी, गया कि आपके मानते हैं, सब बच्चे अभी मानते हैं। नहीं है, चलो ठीक मानते हो हैं, गया। जी, जी। लेकिन आपकी कम से कम बहन तो होगी कोई 10 साल की। मुफ्ती साहब देखें, बहनों के साथ क्या मामला हुआ ये माँ बाप जाने, ठीक है? माँ बाप 10 साल के तो कोई नहीं है, अच्छा। ठीक है? वो भाइयों का तो काम नहीं होता ना मतलब मुफ्ती साहब। आपकी कोई अभी- अब आप देखें, एक अब मिनट आप- सुन, जी, यार जी। सुने तो सही। जी, जी, ओहो, बोलें। सुन तो लें यार। अभी आप मुझे कह रहे थे गुस्से में आ जाता है ये, तो अभी आप गुस्से में आ रहे हैं, ये तो ना मुफ्ती साहब मैं नहीं आ रहा गुस्से में, आप बोले बोले जी। आपने आ जाने अभी थोड़ी देर तक ना। नहीं, मैं इंशाल्लाह नहीं आप आऊंगा बाहर सर। हो जाने आप। अच्छा, तो पहले तो ये बताइए कि ये कौन सी कुरान की आयत है या इंटरनेशनल हदीस नंबर कोई बता दें कि तौहीद के बाद सेक्स का नंबर आता हो। मुफ्ती साहब उसने कहा है मुझे पसंद है, उसने अपना कहा, उसने ये नहीं कहा ठीक इस्लाम हो में गया, है कि तुसी भी मतलब पसंद करो। जी, इसने जी। जो कहा है मुझे पसंद है, वो कुरान हदीस से ये बात नहीं की उसने। नहीं उसने कुरान हदीस से नहीं, उसने अपनी चॉइस। मुफ्ती ये साहब आपको कहानी बिरयानी सुनाई पसंद है, है मुझे पुलाव पसंद है, उसने सर एक बात की है ना, उसने अपने कहानी दिल सुनाई की है बात की है। सर कहानी सुनाई है ना उसने। नहीं बात वो सीकर था, इस्लाम है सेक्स एजुकेशन बच्चों को दे एक लिमिटेड या तो yes या नो होता है, ये क्या तरीका है भाई? विचली नहीं, गल उसके- तुसी मर्ज़ी ये जो- ये उसने कहा- ना विचली गल कर दिया करो। मुफ्ती साहब उसने अपने दिल की बात की कि मुझे मतलब पसंद ये है कुरान इस्लाम हदीस की का। बात है कि नहीं ये बता। कुरान हदीस में है ना, ज़िना ना करो, औरतों को ना अब देखो। कुरान जी जी हदीस में है। कहाँ पे है कि तौहीद के बाद सेक्स का नंबर है? नहीं मुफ्ती साहब ये नंबरिंग तो नहीं कुरान हदीस में आई हुई, आप तो एक और बात कर रहे हैं। कुरान तौहीद के हदीस बाद में सेक्स का नंबर अगर कहीं है तो वो हदीस ला दें, नहीं तो मैं हदीस आपको सुना देता हूँ। मुफ्ती साहब आप सुना दें हदीस। हदीस जिब्राइल मेरे सामने खुली है और मैं आपको सुनाता हूँ। जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अच्छा नहीं, ये काला या मुहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम की खबर दें। फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम अंता शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी तौहीद, सबसे पहले तौहीद। व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये है रिसालत। इसके बाद आगे फिर व तुकीम अस्सला व तुती ज़का, या अगली चीजें बाद में। तो ये इस्लाम के अंदर तौहीद के बाद तो रिसालत है, फिर क़याम सलात है, फिर ज़कात की अदायगी है, फिर रोजे हैं रमजान के, फिर हज बैतुल्ला है, ये तरतीब बताई हुई है। तो ये कह रहा है कि तौहीद के बाद सेक्स इसको पसंद है, तौहीद के बाद इसको रिसालत क्यों नहीं पसंद? सेक्स डिसिप्लिन मुफ्ती साहब, हाँ वही डिसिप्लिन उसने कहा, डिसिप्लिन, जी। वही। तो ये कौन सी कुरान की आयत या हदीस में है सेक्स डिसिप्लिन? तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन है। साहब उसने अपने दिल की बात की है, उसने ये नहीं कहा कि इस्लाम में ऐसे भाई तस्वीर अभी है। आप कह रहे हैं वो कुरान हदीस से बात करता है, अभी आप कह रहे हैं दिल की बात है, किसी नहीं, एक जगह कुरान टिक हदीस तो में दें आप। मुफ्ती साहब कुरान हदीस में है ना कि आप डिसिप्लिन में रहो, सेक्स ये तो नहीं गेड़ी लब्बे उन्हें ठोक हाँ, दो। कुरान में वही तरतीब से आयत रोना कौन सी चाहिए। है कि कुरान में है कि सेक्स डिसिप्लिन में रहो, वो आयत चाहिए। कुरान में ये तो है ना जना से दूर रहो, ठीक है? अपने बच्चों को भी नहीं, वो ज्यादा नहीं बताइएगा, समझाना है ना, कौन पढ़ाना सी है आयतें ना। बताइएगा सेक्स डिसिप्लिन वाली। मुफ्ती साहब आप बात को घुमा रहे हैं, अंदर से आपको भी पता है असल में मसला पता क्या है? बात कर रहा हूँ, असल में या तो आप मुफ्ती कहें, साहब, इधर देखिए मुफ्ती साहब पप्पू, आपको एक पता मिनट, है पप्पू, जी एक वो क्या मिनट, बात कर रहा था? पप्पू, जी, एक जी। मिनट। अभी आप कह रहे नहीं वो उसके दिल की बात है, अभी आप कुरान का हवाला दे रहे या एक तरफ नहीं टिक रहे आप, यही कादियानी करती हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ना सिखाएं? 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के? आप मुझे बताओ। बात है या कहे कि नहीं कुरान हदीस की बात है, बिल्कुल है जी, इस्लाम में है, आप अपने बच्चों को सिखाएं। हमने सिखाएंगे तो बाहर से सीखेंगे। मर्ज़ई पप्पू कह रहे हैं आज जी, ये कुरान के हदीस की देखिए बात कर रहे हैं, ठीक मुफ्ती है। साहब आज अब के दौर एक के मसले कुरान की यही आयत दे हैं। दें, एक हदीस से। देखिए इज्माए उम्मत भी एक चीज है ना मुफ्ती साहब, आज के दौर मुसलमान की मुसीबत क्या उम्मत आ गया है? जी। देखिए अब मुफ्ती साहब कुरान हदीस गया, देखिए अब ना, इज्माए उम्मत आ गया। नहीं मुफ्ती साहब हमें इस बात से आज के आपके बच्चों का क्या मसला है, मेरे बच्चों का, हमारे नहीं, बच्चों का नहीं, क्या यार, मसला है? एक जगह पे तो टिक जाओ। क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है मुफ्ती साहब के अंदर है, आप कह रहे हैं अब इज्माई उम्मत पे आ गए हो। कुरान हदीस में है नहीं 10 साल का बच्चा हो के 8 साल का हो, उसको मार के भाई वो आयतें तो दे दें, नमाज, कौन सी आयतें हैं? उसको मारो और नमाज सिखाओ। नमाज जब दीन का है तो ये भी तो दीन का काम है ना मुफ्ती साहब। आयतें बताइए कौन सी आयतें?
मुफ्ती साहब देखें, इस तरह तो मुझे आयतों का तो नहीं पता, इस तरह तो आप निकालना चाहो तो अपने कीजे से भी सबके में कोई ना कोई आप लोगों मुफ्ती साहब सब ने कहानियां पेश की हुई हैं, सब ने कहानियां पेश की हुई हैं। जी जी मरज़इयां दियां कहानियां शुरू, मरज़इयां दियां कहानियां। अच्छा, मिर्जा जूनियर जेल में तो कल तक ये कहता था बाबे कहानियां सुनाते हैं, बाबे कहानियां, तो आप मरज़इयां कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं, बाबे तो सुनाते हैं, कोई शक ही नहीं उसमें। ये कहानियां तुम लोगों ने सुनानी शुरू कर दी हैं। बात करो कादियानी, कहानियां सुनाओ, प्रूफ के साथ बात करो। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइए, जो आपके ये जो छोकरा है इसने मुझे कादियानी बोला, मुझे आप ये बताएं कुरान में आप कैसे मेरे दिल चुभ रहा है, किसको कह रहे हैं आप, किसको ये जिसने मुझे कादियानी बोला है छोकरा ही होगा ना आपका, और कौन हो सकता है मुफ्ती साहब? ये मेरा है, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि मुफ्ती साहब क्योंकि उसको पता है आप राट पे हो, तो आपके पीछे ये बोल रहे हैं ना, तो इसलिए तो मैं आपका ही बोलूंगा ना, क्योंकि आपको फॉलो कर रहा है ये बंदा, तो मैं आपने जिससे मुझे का बोल दिया। क्यों यार आप लोग अच्छा मुफ्ती साहब मुझे एक क्वेश्चन पूछ दें, मैं सर जी आज ही लानत भेज दूंगा इंजीनियर के पास, आज सारे आगे हो तुम कादियानियों से भी। मुझे एक बात बता दे, मैं कादियानी कज़्ज़ाब जो था वो उससे भी आगे हो 2 हाथ तुम लोग। मुफ्ती साहब मैं आज ही इंजीनियर मिर्जा पे लानत भेज दूंगा, मिर्जा कादियानी उससे भी 2 हाथ आगे। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो जो आप दोबारा पैदा होकर भी नहीं दे सकते इंशाल्लाह। तुमने दिया नहीं है। अच्छा मैं हार गया, आप जीत गए, आप मेरा क्वेश्चन सुनेंगे? अब हार गया तो जीत गया। जी जी आप मेरे भी क्वेश्चन सुने ना। बांदरों की तरह कभी भी उधर कभी उधर, मुफ्ती साहब दरख्त पे कभी उस दरख्त पर। मुफ्ती साहब आप भी मुझे कादियानी कह चुके हो, पहले आपके छोकरे भी कह चुके हैं, आप मेरे दिल में बात करो इससे, आप मेरे दिल में। अच्छा ये जो भाई बात करेगा वो मुफ्ती साहब का छोकरा होगा, वो अनपढ़ जाहिल, तुझे ये भी नहीं पता, जो भी कोई बात भी अगर का इस्लाम की वो समझो मुफ्ती साहब का छोकरा है। क्या बात मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है नहीं हो छोकरे आप मुफ्ती साहब के आगे सुनो, मेरी बात सुनो। यानी कि जवाब दे रहा होगा उसको आप टारगेट कर देते हो। अच्छा आप सुनो, मुझे आपने कादियानी बोला है ना, अच्छा सुनो मुझे कादियानी बोला, के साथ बात कर, प्रूफ के साथ बात कर, मैं करता हूँ अभी, मैं तो आपके मंजी ठोकता हूँ ना, आपने मेरे दिल में जान के देखा है मैं कादियानी हूँ, आपको पता है अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, तुमने मुझे कादियानी बोला है। ये करशर साहब आए हैं, तेरी टक्कर के हैं, करशर साहब बात करें। करशर साहब सर जी, करशर साहब आपने मुझे कादियानी बोला, आपके पास क्या दलील है, आप अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, मैं कादियानी हूँ? तुम क्या हो, चलो ये बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाईजान, मैं मुसलमान हूँ, कादियानी हूँ, कादियानी नहीं हूँ। ज़ाहिर है, तो कैसे पता है सर, हदीस के रसूल का मफ़हूम है, मैं हदीस का बताऊँ क्या हुआ था? क्या नाम है अपना तेरा? नाम क्या है तुम्हारा? मलिक भाई है, मलिक। जब तुम बात कर रहे हो ऐसे लग रहा है जैसे तेरे पीछे कोई बंदा कोई ना छुरी लेके भाग रहा है, तू ऐसे तुझे सांस चढ़ा हुआ है। आराम से बात करो, डिबेट के साथ बात करो, क्या तुम्हारा मोटिव है और क्या तुम बात करना चाहते थे, क्या वो सवाल है, ठीक है? तुम मंजी ठोकने आए हो, चलो उस पर बात करो, ठीक है? नहीं मैं सिर्फ यार आपने मुझे कादियानी बोला, इसका मुझे आंसर देना, आपने कैसे बोला? आप कोई वलीउल्लाह हो, कोई आप नबू, आपके पास आप कोई रसूल हो, कोई नबी हो जो मेरे दिल में जानते हैं, आप खुद खुदा हो यार, आपने खुदा को बताया है, बताओ कैसे कादियानी? बात होगी अपना मुफ्ती साहब, आपकी हेल्प करनी पड़ेगी कि मैं एक रेस्टोरेंट पे चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं ऑर्डर करता हूँ चिकन करी, ठीक है? तो उधर मैं जब खाता हूँ तो मैंने बोला ये तो कल के खाना पड़ा हुआ है, तो वो कहता आपको कैसे पता है? मैंने बोला यार क्योंकि मैं किचन का कुक शेफ हूँ, मुझे पता है इस बात का। तो अगर आप गोल्ड वाले से पूछेंगे तो वो चीज़ को देख के उसको पहचान जाता है, ठीक है? तो जो आपकी बातें होती हैं, सुनो मैं तुम्हारी मंजी ठोकता हूँ, आप सुनो, हमारा गोल्ड वाले ना जो रेस्टोरेंट वाले ना टिकटॉक पे बैठ के पता चल जाता है, सही है? एक मिनट साबिया रसूल ने एक मिनट रुकें जी। यही बातें हम करें तो वो गालियां हैं, तेरी मंजी ठोकता हूँ, इतनी तुम घटिया किस्म की गुफ्तगू, तुम्हें एकेडमी के अंदर यही सिखाया जाता है, तुम्हें यही सिखाया जाता है। वो तेरे बाप की उम्र का सामने बंदा बैठा हुआ है जो तुमसे बात कर रहा है, शर्म नाम की कोई चीज रखती तुम लोगों के अंदर है नहीं। बाप की उम्र भी ऐसे बगैरत किस्म के लोग हैं, और मर्ज़ई सारे के सारे भी बेगैरत। मेरी एज देखें और ये देखें, इसकी मेरा बड़ा बेटा जो होगा इसकी एज का होगा और मुझे कैसे मुखातब कर रहा था,
کہ یہ आपका छोकरा मैं आपसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाह रहा, मैं सर अशर भाई जितनी पोलराइजेशन इस बंदे ने आगे फैलाई है ना, सर उम्मत सिर्फ में क्वेश्चन मेरा सुन किसी लो, ने इससे क्वेश्चन पहले सुन इतनी पोलराइजेशन नहीं फैलाई है, इतनी लो यार, उम्मत बदतमीजी को जोड़ रहा है भजन, उम्मत को जोड़ ये रहा है, जोड़ रहा वो है, आप इतनी लोग समझ पोलराइजेशन जाओगे। फैला रहा है कि ना तुम्हें वो पता है तमीज अल्लाह- से बात करनी है किसी अल्लाह से, और ना रसूल तुम्हें मेरे हलाल का भाई, पता है, यार ये मंजी मुफ्ती साहब ठोकने आ गए हो तुम। नहीं ये मंजी ठोकना जानबूझ यार, कैसे बिना प्रूफ के डिबेट करते हैं यहाँ पे बैठ अच्छा मैं प्रूफ, इन लोगों अच्छा के यार पास मेरे भाइयों मैं प्रूफ देता हूँ ना, मैं हदीस से नहीं, रसूल पे यार आपके सुन पास तो लो ना, कोई हिम्मत दलील करो है तो ना, आप उस तरीके से मुझे मैं दलील देने लगा ना, सुन तो लो, दलील तो आप दूंगा, आउट ऑफ द वे जाके आप बात आपको कर रहे सांप हैं। सूंघ जाएगा, सुनो तो सही ना पर ये तो बात है, आप कुरान हदीस पे आते नहीं हो ना, आप बाबों के पीछे चलते हो ना, मेरी सुनो ना, फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं 30 सेकंड्स मेरी बहन 30 सेकंड्स देंगी, नहीं देंगे चलिए, आपको, मैं हिम्मत ही नहीं है, You have 30 to सेकंड let सुनो, आप सुनो finish. आप जी सुनिए, इसकी बात सुन ही नहीं रहे। पहले जी, आप सुनाएं। डिशेस वॉश कर लें, म्यूट लगाया करें। अच्छा मैंने बात कर दी है, मैंने आप बंद बात कर दी है। करते हैं या कोई भी बात करता है, प्लीज उसको बात कंप्लीट करने दें, फिर आप अपनी बात करें आगे। जी भाई जान बोकर साहब बोले, आप क्या कह रहे थे? ऐसे तुमसे कौन बात करेगा? तो अच्छा मुफ्ती साहब बात जी, मुफ्ती साहब मेरा दे रहे हो, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, यही तुम्हारी करतूतें हैं। शर्म नाम मुफ्ती की साहब, तुम्हारे अंदर मुफ्ती कोई चीज साहब नहीं हम बन रही। सबको समझते हैं, हम सबकी आपकी मैं आपको इतने साफ साफ कह रहा बदतमीज हूँ, किस्म के मर्ज़ई हो तुम। हालांकि शर्म जिस नाम तरह की आप तुम्हारे बात अंदर कर रहे हैं, आपको तो जो बंदे गालियां देते हैं ना, ठीक है, वो गालियां मुझे देते लगता है हैं, आपका वो इलाज उनमें करते से हैं, तू भी शामिल है। लेकिन मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, मैं आपको साफ 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 कह रहा हूँ, ठीक है मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए, हदीस रसूल का मफहूम है, आपने सुनी अच्छा, चलो होगी, ठीक मुझे है बता, वो ये तौहीद के बाद सेक्स का नंबर है, कौन सी कुरान की आयत और हदीस है? मुफ्ती साहब मैं हदीस एक बता दो, उसका जवाब दे देना, फिर मैं क्या है कि मिर्जा जूनियर जेल में ने गप मारी है, ये कहानी सही है। मैं जूनियर पे लानत भेज के जाऊंगा, हमें वो आपके जवाब खुदा दो, की कसम। फिर सुन आपके लो। सवाल का हम जवाब देते हैं, ठीक आपको है? तो पता है ना, आपको हदीस की तरफ आप लोग नहीं नहाते, हदीस की तरफ नहीं हदीस नहाते, की खोल, हदीस किधर है? तो एक तौहीद के साबिर बाद रसूल सेक्स का नंबर हवाला है। दो, हवाला दो। साबिर रसूल जंग में थे, ठीक है, ये मुफ्ती साहब को पता होगा, बड़ी फेमस हदीस है, मुफ्ती साहब अगर मैं गलत बयान कर रहा हूँ, मुझे रेफरेंस दो, इंटरनेशनल रेफरेंस दो ना, इस तरह तो नहीं होता ना, वो मिर्जा हवाला जूनियर नंबर जेल दो, में पेज नंबर इंटरनेशनल दो, नंबर कौन बताता से है। मैं ढूंढता हूँ, मैं दीन हूं, मैं निकाल लूंगा वो ठीक है, इंटरनेशनल नंबर। ठीक है मुफ्ती साहब 2 मिनट दे, मैं ढूंढता हूँ, आप आपस में बात करें, मैं म्यूट करता हाँ, हूँ। जल जा, उसको फोन कर जाके। मुफ्ती साहब माजरत के साथ ये आपके लेवल का नहीं है, रोज आ जाता है अभी खपाने, पता नहीं इसको किधर से कोई पैसे मिलते हैं इस चीज के, रोज हमें इसीलिए आके तो 2-2 मैंने ये 3-3 घंटे कशर खपाता है। भाई को कहा कि ये आपकी टक्कर का आदमी है, हाँ ये जी, बस जैसा मुंह आपके वैसी लेवल का चपेट नहीं है, है, जरूरी है। पर इससे मुफ्ती ये क्रशर भाई एक हैंडल और करें। बात है ना, जो हवाला दिया जाता है ये अपनी किताबों से देंगे, वो उतनी हम मानेंगे ना, या वो किताबें, ठीक है, जो ज़ाइफ किताबें उनका हवाला दे, जिनको कोई बात जिन नहीं पे जी, हम भी बैठे हैं ना, इत्तेफाक इधर करते जीरा करेंगे, हम बैठे हाँ, हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, दें हवाला दे, सबसे हम उसके पहले ऊपर जीरा सर करेंगे। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर हम इन किलाए पे जाते हैं, मुझे हमेशा इन लोगों ने गालियों से मेरा इस्तकबाल किया है, उसके मेन वजह यही होती है कि मैं इनको जब जाता हूँ उसी वक्त ये स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तो भाई मिर्जा जूनियर जेल में की ये तलीमात है, सुन लें, ये तलीमा सुन लें। ये इनको सिखाया जाता है, एकेडमी का ये दर्स है, गालियां निकालो, गंदी बातें करो, गंदी गंदी बातें करो। आप उंगली भी लगाए ना, ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना, ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू सुन लिया आप लोगों ने, ये है एकेडमी की तलीमात। ये नहीं सर पहनता हूँ, ये नहीं सर पहनता, ये खलो गई, ये नहीं डिशा है। ये इस्लाम का परिचर है जनाब, ये इस्लाम की तलीमात हैं, ये है। और जो मुफ्ती साहब आज इसने उस पे जो कहा है जी कि मैं देने लगा हूँ इल्मी जवाब, उस बात का मिनी गार्ड का, जो उसने 5 पॉइंट दिए हैं, इतने कोई जाहिलाना उसने पॉइंट दिए हैं कि मैं कहता हूँ कि उस पे बंदा उसको क्या बोले, उसके नहीं, इल्म वो का तो लेवल चेक 5 कर। का अभी मंजी ठोक दी है हमने भी इनकी, वो पिछली ब्राड के अंदर वो किसी कोई आया था, वो बंदा कह रहा था जी, वो उसने 5 जवाब, मैंने कहा कौन से 5 जवाब हैं, तो उन 5 जवाबों के ऊपर हमने तफसीली तबसरा कर दी है। यही बात है कि एक कायदा कुलिया है कि असरीहु ला युकबल तवील, कलमा सरी के अंदर तवील की गुंजाइश नहीं होती। मैं अगर कहता हूं मिर्जा जूनियर जेल में को ये कहता हूं कि तू कुत्ते का बच्चा है,
تو بھائی یہ عرف عام کے اندر یہ گالی ہے. اب اس کی میں طویلیں کرنی شروع کر دوں, میں کہوں نہیں اصل میں یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی کا جو والد ہے ارشد, تو وہ جو ہے نا مشین محلے کا بڑا وفادار انسان ہے. تو چونکہ ارشد کے اندر وہ کتے کی صفت پائی جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو کتا کہا. تو مرزا جونیئر جیلمی چونکہ اس کا بیٹا ہے تو اس لیے میں نے اس کو کتے کا بچہ کہا. تو یہ طویل کوئی بھی نہیں سنے گا, ہر بندہ کہے گا یہ گالی ہے, مفتی صاحب آپ نے گالی دی ہے. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے اصل میں کہ الصریح لا یقبل الطویل, کلمہ صریح کے اندر طویل ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اب وہ ایک شرک کا عقیدہ دے کے منی خدا کا اس کے اوپر طویلیں کر رہے ہیں. مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا اور آج تک قادیانی یہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے کفریات اور شرکیات کے اوپر طویلیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی کی مطلب یہ تھا, مراد یہ تھی, مطلب یہ تھا, مطلب یہ تھا, مطلب یہ تھا. اب مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کام کر رہا ہے. جی مفتی صاحب آگے حدیث نمبر آپ لکھنا ہے, کسی نے تو بھائی نے لکھنا ہے. ایک منٹ بھائی, میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, صبر کیا کریں آپ. تو یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, توحید کے بعد سیکس کا نمبر ہے, اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں. وہ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی باندروں کی طرح ایسے مرزئی پپو جو ہے نا وہ چھلانگے لگا رہا ہے. لیکن نہیں, وہ بھائی لعنت پاؤ تو کہ وہ نہیں مندے سی اینو لعنت پانے ہیں خبیث دے بچے دے اتے. جان چھڑاؤ تسی اپنی, طویلیں کر رہے ہیں, طویلیں کرتے جا رہے ہیں. ہاں جی کڈو کیڑا سپ کرنا جاؤں بولو. جی یہ کتاب الہدایت ہے. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. ایک منٹ رکیں میں کھول, انہیں بولے کیمرہ کھول کے دکھا دے نا مفتی صاحب. ایک منٹ جی رکیں جی. یہ میری بہن مجھے نہیں پتا یہ کیمرہ کیسے کھولتے ہیں. ایک منٹ ہے جو اینو کچھ بھی نہیں پتا, مردیاں نو کی پتا ہے. اچھا بخاری دی نمبر کی ہے 6872. ایک منٹ 6872 یعنی 6872 یہ ہوئی ہے. جی سر, جی بالکل. ایک منٹ ٹھہر جا. ہاں کی یہ دے چ آگے جی میرے سامنے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ وچ وہ حدیث شروع سے پڑھ. مفتی صاحب میں اصل میں جب میں موبائل سے بات کروں, جب میں پیچھے جاؤں گا نا تو شاید آپ کو میری آواز نہیں آئے گی. پترا تو حدیث دی گل کرنا پیا, تو مینوں کہانیاں سنانا پیا. حدیث پڑھ کے سنا, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے حدیث سنا. چل پیچھے جانا اگے آنا, پیچھے آنا پیچھے جانا تے اگے جانا, یہ کی اگے پیچھے لائی ہوئی ہے. صاحب میں اصل میں جب اسکرین دوسری پہ جاتا ہوں نا اپنے موبائل سے تو آپ کو میری آواز نہیں آتی. تو نہ دوجی تے جا, تو ایتھے ہی رہ. چل میں ادھر سے آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کے حدیث سنا. مفتی صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں, جب میں اس طرح اسکرین چینج کروں گا مفہوم نہیں, میں خود عالم دین ہوں, میں مفہوم سمجھ جاؤں گا. میں دوسرے موبائل سے نکالتا ہوں, ایک منٹ ہولڈ کریں. دوسرے موبائل سے نکالو, حدیث پڑھ کے سنا. اج مرزائی کو میں حدیث سناؤں گا. تساں کی ڈرامے رچائے نے, ترجمے سنا کے لوکاں نو ہے اپنے لکمے تسی حدیث تے قرآن دے منہ دے وچ ٹھوک دے ہو. قادیانی بھی یہی ڈرامے لائے نے, ترجمے. مفہوم کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. چل حدیث سنا مجھے اور میرے سامنے بیٹھ کے ترجمہ کر. آج لگتا ہے جی مفتی صاحب یہ میں نے نکال دی ہے. نکال. جی یہ دوسرے موبائل سے میں نے نکالا ہے. ہم سے عمرو بن زارا نے بیان کیا تھا. عربی حدیث عربی کا نام ہوتا ہے, ترجمے کا نام حدیث نہیں ہوتا. اچھا عربی میں بول دوں گا, شاید آپ کسی بھائی کو, مجھے تو خاص میں نہیں ہے جی. اچھا حدثنا عمرو بن زرارہ حدثنا حسین حدثنا حسین
हदासना हदासना अबू है, हदासना 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 है। अन्नी दिया बच्चा तेनू तू वेख के पढ़नी नहीं होती भाई, तो कुरान भी पढ़ना भी हदा- नहीं आता, पहला कुरान भी लफ्ज पढ़ना तेनू नहीं नहीं आता पढ़ना इस आंदा बंदे को। पिया। देखो देखिए पहले हदीत इन अरबिक हदासना ये मैं ओए तेरे सामने हदासना नहीं है, देखिए जी, मेरी जाहिल बात इंसान, सुनिए जाहिल आप मुतलक। प्लीज कुरान अगर आपको नहीं आता, सॉरी मुफ्ती साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ भाई, अगर आपको कुरान नहीं आता तो प्लीज एक आप मिनट, मैं भी आप अभी औरत है, आप साइड पे रहें, बस मुझे बात करने दे इससे, सुने। हाँ अच्छा चल पढ़। अच्छा 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 अगर ये हदासना नहीं है तो ये क्या है सर? हदासना, हदा ओ अच्छा सॉरी हदासना जी जी माजरत करता हूं। हदासा जो सुलासी हदासा। मुजर्रद है, हदासा जी, sorry। सुलासी मजीद फी है। जी जी माजरत जमीन करता हूँ आसमान मुफ्ती का साहब। फर्क है, तर्जुमे के अंदर जमीन आसमान का फर्क मैं पड़ता है। माजरत करता हूँ, मैं इसीलिए सर उर्दू में आ रहा था, इसीलिए मैं नहीं कहता उर्दू नहीं ना, उर्दू का नाम हदीस नहीं है, अरबी का ठीक नाम है सर। हदीस है। ठीक है सर। हदासना चल पढ़। अमरू इब्नु जुरारता अमरू। अमरू जी अमरू इब्नु जुरारता हदासना हुसैन। एक मिनट, ओए हदासना ओए जरारा दा आराम से पढ़, जरा शुरू से दोबारा पढ़। तो बस मुफ्ती साहब हदासना अमरू इब्नु जुरारता हदासना हुसैन हदासना अबू ज़बियान काला समीअतु उसामत न ज़ैद इब्न हारिसाता रदियल्लाहु अन्हुमा युहद्दिस बस काला यहाँ तक तर्जुमा करो। जी यहाँ तक तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन उबैद ने। अबू नईम ने बयान किया, पहले रावी अमर बिन जरारा ने। सॉरी मैं माजरत, मैं अगली सीधी से टुर गया साहब, सॉरी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब तुसी कंफ्यूज कर देते ना, तुसी ऊपर से कंफ्यूज कर देखते देते तुझे हैं। नहीं पढ़ना आ रहा। अच्छा मैं हाँ। एक मिनट, उर्दू हदीस ठीक है, ये केड़ी अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ दूं? नहीं इंग्लिश का नाम तो नहीं हदीस है, अरबी का तर्जुमा कर जिन्ना पढ़े ही। तो भी अच्छा जी, फोन कर ले, फोन कर लो नहीं। मिर्जा जूनियर जेलमी को, जे वो मुफ्ती साहब भी ये पुत्र उर्दू- मैनू ਇਹਦਾ तर्जुमा करके सुना दे ना, तो मैं उन्हें आलिम मानांगा, तो बाकी यो आलिम है। नहीं मुफ्ती साहब मैं आपको सुनाऊंगा, उसकी तो आपको जरूरत सुना नहीं पड़ेगी फिर, चल इंशाल्लाह सुना। ताला। जी जी हमसे ये मुफ्ती साहब कहते हैं यही लिखा हुआ है, उत्ते हदीस लिखी हुई तर्जुमा लिखा है, हमसे उमरू बिन ज़रा ने बयान किया। उमरू नहीं, लफ्ज उमरू नहीं है, अमर है। अमर 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 बिन ज़ारा ने बयान किया, ज़ारा नहीं, कहा ज़रारा ज़रारा ने बयान किया, कहा हमसे हुशैम ने बयान किया। ओए ज़ुरारा, ओए ज़ाद ज़ुरारा उत्ते ज़ुरारा पेशी ज़ुरारा 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 दंदिगा का जोन। हमसे हुशैम ने बयान किया, हमसे हसैन ने बयान किया, ओए कहा हसैन नहीं, ओए हाद उत्ते पेशी हुसैन। हुसैन ने बयान किया, कहा हमसे अबू ज़बियान ने बयान किया, कहा मैंने उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना, उन्होंने बयान करते हुए कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़, अच्छा अब आगे अरबी अल्फाज पढ़। काला समीअतु उसामा तबना ज़ैद इब्न हारिसा। तर्जुमा हो गया वे अगू पढ़, तेनू इन्ना पता ही को नहीं तू केड़े लफ्ज़ां दा तर्जुमा करना है, तू वेख के तेनू नहीं पता चलदा पिया। मुफ्ती साहब तुसी बस असर च टाइम अपना ज़ाया करियो, सब दा ज़ाया करियो, तुसी मुद्दे दी तरफ नहीं आ रहे, मसला सारा है। तर्जुमा हो गया, जो हदीस तक तर्जुमा हो गया, आगे पढ़। काला बासना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल हुरकती मिन जुहैनता काला। बस यहाँ तक तर्जुमा कर। उन्होंने कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जहीना की एक शाख की तरफ से मुहिम पर भेजा। ठीक है आगे। मुफ्ती साहब मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना, सीधा रहने दियो, उर्दू सुन लो। बस तू पढ़ता जा। अच्छा काला फसब्बहना अनल कौमा फहज़मनाहुम काला वलाहिक जिंदगी ने अरबी पढ़ी है ना, ए उलमाए कराम तेनू लित्तर फेरने ना। ओ यार उलमा कराम जेड़े लित्तर फेरनगे आ जान मेरे सामने, जुर्म करन। मैं कोई अरबी नहीं मुफ्ती साहब, मैं कोई मैं समझो मैं इथे मैं किसी ईसाई को मुसलमान कर रहा, मैं उस ईसाई को कहूं तू पहले अरबी से कहेगा जा मैं कुछ नहीं आता जाता, पता है नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा यार नहीं होंदी है। जाहिल हो तुसा एक बेड़ा गर्क कीता है,
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਬੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੋਕਦਾ ਹੈ और अरबी पिछे लाए है वो कहते हैं अच्छा अरबी पिछे देख लो, देख लिया आप लोगों ने। तर्जमे ना पढ़ो, अब माइक म्यूट करना, माइक म्यूट करना, इसका माइक देख लिया जी, सुन लिया कि वो इसलिए तुम्हारी उलमा इकराम की मंजी ठोकता है कि तुमने कुरान और हदीस की अरबी के पीछे लोगों को लगाया है। देख लें, देख लिया आप लोगों ने। ये है मिर्जा जूनियर जेलमी का इस्लाम और इन मरज़इयों का इस्लाम। कुरान हदीस है ही अरबी के अंदर। सब पढ़ना तो सब नु आंदा है, चुप कर जा, चुप कर जा, तर्जमे दी गल मुझे तबसरा करने दे, अभी तबसरा करने दे, अभी इसके ऊपर मैं तबसरा करूंगा थोड़ा सा। माइक इसका म्यूट करें जी अभी थोड़ी देर। ये है इस्लाम इनका, मरज़इयों का। देख लिया आप लोगों ने, ये हकीकत हाल आज आपने सुन ली, दिल की बात सामने आ गई है ना, जुबान के ऊपर आ गई है। ये उलमा इकराम से नफरत की वजह भी सामने आ गई कि ये वजह है कि उलमा इकराम कहते हैं अरबी, क्योंकि कुरान हदीस है ये अरबी के अंदर। और ये जो हमसे नफरत करते हैं, ये है मरकजी वजह कि उलमा इस्लाम जो है, जो दीन मतीन के मुहाफिज हैं, वो इनको सीधी राह बताते हैं, लेकिन ये कहते नहीं हमने अपने नफ्स की बात माननी है, जो हमारा मन मानेगा हमने वो काम करना है। चल आगे कर, इसका तर्जुमा कर जरा, ये जो अरबी लफ्ज तुमने पढ़ा इसका तर्जुमा कर। जी मुफ्ती साहब एक मिनट में। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जहीना की एक शाख की तरफ मुहिम पर भेजा, बयान किया कि हमने इन लोगों को सुबह के वक्त जा लिया और इन्हें शिकस्त दे दी। रावी ने बयान किया कि मैं और कबीला एक मिनट ठहर, अरबी दे लफ्ज पढ़। जी माजरत, सॉरी एक मिनट। हमने शिकस्त दे दी, ये किसका तर्जुमा है? ये तर्जुमा जो तूने किया है, हमने शिकस्त दे दी, ये किस लफ्ज का तर्जुमा किया है तुमने? ये मैं ये किस चीज़ का लफ्ज है? ये नहीं, हाँ बोलती बंद हो गई, बस ठोस हो गई हो। मुफ्ती साहब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुझे अरबी नहीं आती। शिकस्त दे दी, तर्जुमा किस लफ्ज का किया है तुमने? जी ये मेरे ख्याल में आता है, यहाँ तक पहुँचा वाला हिक तो आना वारा वारा नहीं, वो अरबी के लफ्ज बता तो किस लफ्जों का तर्जुमा किया है तुमने? मुफ्ती साहब शिकस्त का अरबी तो नहीं मुझे आती, शिकस्त दे दी खान तक मैं पहुंचा। देख लिया आप लोगों ने, ये है इल्मियत इन लोगों की। अच्छा ये जो बैठे हुए अकेडमी के अंदर बैठ के सिखा रहे हैं मुफ्ती हैं, जो 8 लोग बैठे हुए हैं, इनको पूछो शिकस्त का अरबी में क्या, कोई एक भी जवाब दे दी। वो ये दावे तो नहीं कर रहे, ये सारे बैठे दावे तो तुम लोग के हम हैं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो हाँ तो सर मुस्लिम इल्मी किताबी होने के तो दावे तुम लोगों के हैं, मुस्लिम इन लोगों के तो नहीं है। अपनी जुबान में सीखेंगे तो समझेंगे ना, अरबी सिर्फ अरबी हम पढ़ सकते हैं अपनी जुबान में। उर्दू जो मैं आपको बता रहा था, उर्दू में तर्जुमा आपने सुनना ही नहीं, आपको सुनना, आपको पता है कि आपकी शिकस्त हो गई। इसका तर्जुमा बता तो कौन से लफ्ज के हैं? मुझे नहीं पता मुफ्ती साहब, मैं गूगल से निकाल देता हूँ, गूगल से कहेंगे तो मैं झूठे लोग कहानियां बेड़े गर्क कर दिए तुम दो मिर्जों ने पकड़ के, छोटे मिर्जे और बड़े मिर्जे ने, मिर्जे सीनियर और मिर्जे जूनियर ने। नहीं इंशाल्लाह ये तो आप लोगों का बेड़ा गर्क करेगा। खेल के कुरान और हदीस का कार्ड खेल के तुम लोगों ने अपना लुकमा कुरान और हदीस के मुंह के अंदर डाला है। अच्छा चल आगे पढ़, तुम्हें पता ही करके नहीं है। शिकस्त दे दी, रावी ने बयान किया कि नहीं अरबी 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 अरबी। अच्छा अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो तूने तर्जुमा किया है ये कहाँ तक का तर्जुमा है, कौन सी इबारत का? अच्छा मुफ्ती साहब एक काम करते हैं, पहले मैं सारी अरबी पढ़ लेता हूँ, फिर उर्दू पढ़ लेते हैं। वजह कोई वजह भी दसो ना। मुफ्ती साहब मसला पता है क्या, आप वो वेले आपको तो चंदा मिल जाएगा, बाकी हम सब काम काज पे जाने हैं। चल चला जा, जाके तू इधर बैठ के क्या कर रहा है? काला ला इलाहा इल्लल्लाहु। नहीं तूने काम पे जाना है तो चला जा।
मुफ्ती साहब मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने मुझे कहा था ना कादियानी, मैं उसको उससे माजरत कराना चाह रहा हूँ, वो मुझसे माजरत करे। अरबी इबारत पढ़ो जी। काला फलम्मा कदीमना बलगा ज़ालिका नबी, वो काला फलम्मा पर पहुंच गया है, जबकि तर्जुमा जो है ना इसने फा हजम ना हम तक का की है। जी जी मैं ओके जी जी ठीक है सर। आगे है काला, और ये शिकिस्त देरी भी तर्जुमा इसी लफ्ज का है। इसको पता ही करेंगे जाहिर इंसान को। जज़ाकल्लाह। जी जी अल्लाह आपको करोड़ जज़ाकल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह आमीन जज़ाकल्लाह। काला वाला हिकतु अना व रजुलुन मिनल अंसारी रजुलुन मिनहुम, रजुलन ओए अन्नी दिया खस्मा उतू वे के पढ़ ले सही। मुफ्ती साहब आपने कंफ्यूज कर दिया, मादर चाहता हूँ रजुलन, कंफ्यूज हो गए तुसी। मिनहुम काला फलम्मा, तुम लोगों को कुरान दी आती नहीं है और दीन सिखाने के लिए निकले हो तुम लोग घर से। काला फकफ्फा अनहु राजुलन तो आगे अंसारी की है, राजुलन तो आगे की है, मिनहुम मिनहुम तक तर्जुमा कर। रावी ने बयान किया कि मैं और कबीला अंसार के एक साहिब कबीला जहीना के एक शख्स तक पहुंचे और जब हमने उसे घेर लिया तो उसने कहा, आई थिंक यहाँ तक है जी। तो उसने कहा जी जी तो उसने कहा, अच्छा मैं पढ़ता हूँ जी। अबे यार, तो उसने कहा कौन से लफ्ज का तर्जुमा है बता जरा। यार जहालत अल्लाह दी पूरी हुंदी कोई कैप्सूल हुंदा ना जहालत नूं खत्म करन दा ते मैं तेनू कैप्सूल खुआ दिंदा। उसने कहा मैं बड़े बड़े कैप्सूल तैयार कीते ने लेकिन हजे तक जहालत दा इलाज मैं भी नहीं दरियाफ्त कीता। मुफ्ती साहब वो दा इलाज क़यामत तक शायद ना निकल सके। बहरहाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ। जी 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 नहीं मुफ्ती साहब एक गल दी तो मैं गारंटी देना ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ इंशाल्लाह बंद नहीं होंगे, ਤੁਸੀਂ बेगम हो जाओ। बिल्कुल सही है। अच्छा ਕਾਲਾ जो शुरू हो गए ने शुरू हो गए ने ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ खुल गईਆਂ। आप भी भाई चंदा डाल के जाइएगा जरूर प्लीज। जी जी मेरी जो औकात होती है हैसियत होती है मैं चंदा देता हूँ इंशाल्लाह ताला अपनी मस्जिद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ यार पप्पू मलिक साहब गल सुनो यार एक मिनट भाई एक मिनट सब्र कर लो, साह ले लो। अभी तो ये हदीस पूरी होगी तो फिर इसके बाद इसने साबित करना है कि इसके अंदर तौहीद के बाद सेक्स का नंबर है। ये इसके लिए इसने हदीस के निकाल के लाया है, वो मैं बाद में पूछूंगा। नहीं मुफ्ती साहब मैं उसके अंदर साबित करना चाह रहा हूं जो आपने मुझे कादियानी बोला है। की ये चल हदीस पढ़, की वाली हदीस पढ़ हदीस जो आप लोगों ने मुझे कादियानी बोला मैं उसके बारे में हदीस पढ़ रहा हूं। मैं जान नहीं देना, तू इधर उधर निकल। अच्छा जी काला फलम्मा गशीनहु काला ला इलाहा इल्लल्लाहु। चल 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ, तेरी अरबी भी लोकां ने वेख लई, तेरे तर्जुमे भी वेख ले, लोकां ने वेख लिया तू किन्ने को पानी च है। अच्छा अज पुत्र मैं नियत की है कि तेरा मैं इको बारी ना ऑपरेशन करना है, आखिरी ऑपरेशन है तेरा। तेनू मैं 3-4 दिन तू वेना पे टिकटॉक दे उत्ते तू ड्रामे बनाईयां ने ना, अज मैं तेरा जेड़ा ना लास्ट ऑपरेशन मैं करना पिया। अच्छा इस हदीस के कौन से अल्फाज है जहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब तौहीद के बाद सेक्स का नंबर है? मुफ्ती साहब देखो गलत बयानी ना करो, मैं ऐ दी हदीस नहीं क्या, मैं जेड़ा तुसी मेनू कादियानी आखी मैं ओदे मुद्दे ते आ रहा है, तुसी मेनू क्यों कादियानी आखिया, माफी मांगो ना ना मैं ओदे तरफ आ रहा हूं। इसके ऊपर मैंने तुमसे ये हदीस मांगी नहीं, समझ आ गई ना, तुसी समझ गए हो ना, ठुकने वाली है और मंजी ठुकने वाली है तो तुसी नसन लगे हो। रिकॉर्ड के ऊपर हर चीज मौजूद है, हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हदीस इसलिए बयान की है जो आप लोगों ने मुझे कादियानी बोला है, खुद सुन लेंगे लोग, रिवर्स करके खुद सुन लेंगे। आप लोगों ने कादियानी बोला है मर्ज़ैया दी, मैं तुमको मैं बोल रहा हूँ तुम्हें।
आप चाहते हैं कि आपसे मैं बोल रहा हूँ माजरत की तुम्हें, जाए कि आप मैं तो मिर्जा तुम लोगों लोगों से को मदद की जाए। कादियानियों से भी बदतर समझता हूँ। वो कादियानी छोटे खंजीर हैं, तुम बड़े खंजीर हो। चल कर बात। इन्होंने बोला, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला है, और मैं तो कब बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठ के नहीं यहाँ वो पे जो बोल रहे हो आपने पप्पू मेरे मलिक। बाप दादे अच्छा की चले, एज का इस जो हदीस बंदा के निकाला कौन से था उससे अल्फाज है बोला जिनका ना। तर्जुमा ये है कि जनाब तौहीद के पास सेक्स का नंबर आता है? बता देखिए मैं जल्दी अभी कर, जाने जल्दी लगा हूं, कर। मेरे पास आपकी तरह फजूल टाइम नहीं है, फजूल बातों में टाइम गुजाया तुर कर। जा, मुद्दे पे आना तो की करना है पे जा, है, तुर जा। मुद्दे पे आना है, तेनू आए इत्थे नहीं किसी ने आना तो बिठाया है? फिर जाए अपना काम करे। माफी तो आप लेके आप मैं- जो मैं- गुरूर है ना आपकी जाऊं गर्दन में जो मैं, सरिया है वो सरिया मैं। आपका सरिया आपका ये डिंगा कर रहा है इंजीनियर और आपका तोड़ेगा सरिया इंशाल्लाह। चले वो कभी ना नहीं, महविश जो ਤੁਸੀਂ होस्ट है ਤੁਸੀਂ वो आ ਦਰਬਾਰਾਂ गई ਦੇ हैं। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ अब आप ਮੰਗਣਾ बात ਕਰਨਾ ਹੈ कर। इंशाल्लाह ताला। दरबारा ਦੇ भाई बाहर मेरी बात सुने, एक तो आप जब तक म्यूट नहीं खोलेगा पप्पू मलिक, जब तक आपको कोई कहे ना, अब आप बिल्कुल म्यूट पे रहेंगे, ठीक है? आप चाहते हैं कि आपसे माजरत की जाए इस चीज की कि आपको कादियानी बोला है। मैं आपको खुद यहाँ पे सबके सामने आपको बोल रही हूँ, नालत है आपके मिर्ज़ाई कादियानी पे, और आप भी उसी जगह से आपने बातें भी वही की हैं। यहाँ पे बैठ के आपने सबके सामने इस चीज़ का इकरार किया है कि अरबियों को आपने बोला, अरबी की आपको तर्जुमा तक तो आ नहीं रहा था कुरान शरीफ का, ठीक है? आपने उस पे आपने वहां पे बोला कि आपकी मंजियां ठोकी जाएंगी। दिस इज यू बिलोंग टू इट, आप यहीं से बिलोंग करते हैं। आप मिर्जा कादियानी का रेपुटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो आप यहीं से बिलोंग करते हैं, और आप मौलवियों को कहते हैं कि खराब है, बुरे हैं। आपके पास कोई दलील ही नहीं है ठीक तरीके से आप जिस चीज को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकें। और प्लीज आप म्यूट जब तक नहीं खोलिएगा जब तक आपको कोई कहे ना। जी मुफ्ती साहब, आप कोई भी आप में से कोई बात करना चाहता है प्लीज बात करें। जी महविश, आप खुद ही बराड़ को आगे चलाएं, एक बंदे को तो नहीं ना लेके बैठे रहना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये जो भी भाई यहाँ बैठे हैं, कोई भी अलीदा मलंग है और कोई भी जो भी बात करना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। और पप्पू मलिक जब तक अपना म्यूट नहीं खोलेंगे जब मुफ्ती तक इनके पास कोई दलील नहीं होगी। मुझे इजाजत होगी 2 मिनट की? जी जी भाई, बात करें बात करें। जी मैं भी सिस्टर, आपने भी देखा कि आप भी इस से गुजरी कि लोगों ने अपनी मजहबी शनाख्त जो है ना वो छुपाई हुई थी। तो मिर्ज़ा जेलमी ने अपनी मजहबी शनाख्त जो है ना वो छुपाई हुई है। उसके बावजूद सारे कादियानी थे, उसके परनाने जो हैं वो मिर्ज़ा कादियानी के 313 सहाबियों में है, ठीक है? तो उसने तो शनाख्त छुपाई हुई है। हम तो खुलेआम कहते हैं कि जो भी कहेगा कि मिर्ज़ा जेलमी वलीउल्लाह है या उसका फॉलो करने वाला है, हम तो उसको कादियानी मानते हैं, क्योंकि हमें तो साफ नज़र आ रहा है उसने शनाख्त छुपाई हुई है। और हमारा तो रोज़ वास्ता पड़ता है कि कादियानियों ने इधर शनाख्त छुपाई होती है। तो इसलिए ये गुस्सा ना करें कि हमें क्यों कहा और हम माफ़ी मांगे। माफ़ी का कोई चक्कर नहीं है। अगर इनको प्रूफ चाहिए कि उसके बावजूद कादियानी में से नहीं थे तो वो हम बता देते हैं, इनको जाके देख ले। उसके परनाना, नाना, दादा, ये 313 उसमें से हैं, मिर्ज़ा के सहाबियों में से थे। जी जी भाई, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये लोग ढोंगी लोग हैं, ढोंगी। दे हैव नॉट रियलिटी, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन लोगों के बारे में लिखा है ना, इनके दिलों में मोहरें लग गई हैं, इनके कानों पे पर्दे डल गए हैं। तो हम अल्लाह से इनके लिए दुआ ही करते हैं और इनको राह रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं। हिदायत देने वाला तो अल्लाह है। इन लोगों ने तो हिदायत लेने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बस ये एक चोला पहन के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग। अलीदा मलंग, अगर आप प्लीज भाई कुछ कहना चाहते हो, और कोई भी, आप प्लीज अपना म्यूट खोलें, आप बात कर सकते हैं।
पप्पू मलिक, अच्छा अब आप म्यूट खोलें, अब आप बात करना चाहते हैं कोई तो कह सकते हैं आप। ये मेरी बहन, मुझे तो यही लगता है जो क़यामत की निशानियां शायद ये भी है कि आजकल के मुफ्तियों को गालियां पड़ रही हैं हम जैसे छोटे लड़कों से, ठीक है, लेकिन इनके काम ही ऐसे हैं माशाल्लाह कि ये डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल में। क़यामत की निशानियों में से ये भी तो एक निशानी है ना कि आप लोगों के दिलों पे मोहरें लग गई हैं। चले मान लिया मिर्जा इंजीनियर जी एक भाई साहब कह रहे थे जो लैंग्वेज यहाँ पे उसके नाना दादा कादियानी थे, ठीक एक है, तरफ बहन भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतनी लूज टॉक कर रहे थे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो फिर तो आप मिर्जा कादियानी जो जहां से जिस तरीके का वो है उसी मैं सू के बारे में बयान किया गया ना, मुझे तो लगता है ये मुफ्ती साहब शायद ये उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। तभी तो आप उनको कोई एक भी चीज प्रूफ नहीं दे सके, आप उनको गलत साबित ही नहीं कर सके। अच्छा चले मान लिया जेल में, एक मिनट अच्छा मैं अगर मान लूं फॉर एग्जांपल ये जो मिर्जा जेल में का दादा कह रहे दादा का दिया नहीं था मानना फॉर एग्जांपल, और यार हमारे थैंक यू तो ओके मिर्जा राजपूत इंजीनियर को मानते हो आलिम है? मैं मानता हूँ आलम तो यार पता नहीं है नहीं है, लेकिन आलमों की मंजी बहुत ठोकी है उसने। हाँ वो ये जो तुम बयान कर रहे हो ना, ये इस जैसे मिर्जा इंजीनियर दजाल जैसे आलम, ये मौलवी कीम नूरुद्दीन जैसे आलम, और ये जो मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी मुफ्ती सादक जो था, ये जो मुफ्ती मुबशर कालू, ये मरज़इयों के जो आलम, ये इन जैसे आलमों के लिए है। ये आलम बदतरीन मखलूक है आसमान के नीचे ज़मीन पर, ये वो बदतरीन मखलूक है जिनके बारे में ये तुम बता रहे हो। ये इंजीनियर जैसे जो सुनिए वीडियो सुनिए, कभी वीडियो सुनिए तो बात करो। इंजीनियर साहब की वीडियो सुनी आपने? इंजीनियर के ऊपर मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत ना करना। मिर्जा कादियानी को तो तेरा प्यो है ना, उस पे लानत ना करना। कादियानी पे तो सर करोड़ा वो हमारे लानतों से आप कुछ भी नहीं होगा। पूरा नाम ले के लानत। मिर्जा जेल में भी कादियानी है, मिर्जा जेल में कादियानी है, उसने शनाख्त छपाई हुई है। लानत पा पुत्र, तू तोरिया करना है, मुझे पता है तू तोरिया करता है। गुलाम अहमद कादियानी पे लानत। और तो मुफ्ती साहब नाम ले ये करी। गुलाम अहमद कादियानी दजाल पे लानत। और दसो मुफ्ती साहब। जबरदस्त हो गया, बड़ा बेहतरीन अच्छा हो लगा आपके मुंह से ये बात सुन के पप्पू मलिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिर्ज़ाई ऐसे है कि ये उनके वक्त पे ना ये अपने उसको मिर्ज़ाई को भी नालते फेर देते हैं, गालियां दे देते हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। यानी आप यही समझ लो मैं कादियानी और मैं अपने इसको दे रहा हूँ। बहरहाल क्या बोलूँ, आप अल्लाह को जवाब देना। जो कादियानियों का पप्पू मलिक साहब आपके पास प्रूफ है पप्पू मलिक साहब के मिर्जा जेल में के खानदान ने कब इस्लाम कबूल किया कादियानी छोड़कर? मुझे प्रूफ नहीं है ना, मुझे चाहिए अगर कादियानी थे भी तो क्या? हाँ तो फिर आप कैसे कहते हो कि वो कादियानी नहीं है? वो नहीं मिर्जा उसके बाप दादा नाने सारे कादियानी थे। आप अगर वो कादियानी थे तो यार हमारे दादा परदादा निगढ़ दादा क्या पता, हम भी तो दो की औलाद में से है ना, या हैं या नहीं है। हाँ तो हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया ना। तो मिर्जा इंजीनियर ने भी किया ना सर, क्यों नहीं किया? वो तो बाइबल उसका भी था। प्रूफ दो लाकर प्रूफ दो। उसके वाले साहब बरेलवी हैं, वो आपके बाबा को मानने वाले हैं। आपको कह रहे हैं आपके वालिदैन हिंदू थे, क्या ऐसे ही है? आपके वालिदैन हिंदू थे? वालिदैन तो मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੇ वालिदैन अरबी सन, अरब तो थोड़ा दादा परदादा अरबी सी। और मर्द चुप रहे जरा एक मिनट, मैं अपने बंदे से बात कर लूं। अब्दुल्ला भाई वो कह रहे हैं आपके वालिदैन हिंदू थे पहले, क्या ऐसा ही है? हेलो, आई थिंक उनके पीछे कुछ शोर है मुफ्ती साहब, इसलिए कोई बात नहीं। अभी वो बात जब कर रहे थे तो वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है जी वाकई मेरे वालिदैन हिंदू थे, तो वो पूछ लेना, अभी पूछ लें कि वाकई हिंदू थे। साहब मुफ्ती साहब आपके अंदर अल्लाह ताला ने शायद थोड़ी सी बिकल निकाली यार। सानू अपने बंदे ना गल करन दे यार। अब्दुल्ला साहब नहीं ऐसा नहीं है। तो अब अभी वो जब कह रहा था आपने कहा हाँ वो इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं इसको? उसी टाइम रोकते। पप्पू मर्ज़ई सुन लिया ही साहब। पाकिस्तान में जो भी हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम जो पंजाबी है ना, हमारे जो पिछले 100 साल तुम्हारे वालिदैन हिंदू थे ना, तुम्हारे वालिदैन हिंदू थे, हमारे पहले जाओ ना,
तुम्हारे अरबी जब वालिदैन यहाँ पे हिंदू जो थे? भी आया था, मेरे वालिदैन और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे मुसलमान वालिदैन हैं, हिंदू और थे? आप जैसे बरेलवी हैं, आप भाई जैसे बता तो बरेलवी। सही, तेरे वालिदैन हिंदू थे कि नहीं? बता। पप्पू मलिक, आपका इतना भी ज़रफ नहीं है, आपने मुफ्ती साहब की बात कंप्लीट होने से पहले ही उनको बीच में टोका और आपने रिटर्न में उनको ये जवाब दिया कि आपके माँ बाप क्या अरबी थे या ये थे। आपका सेंस काम नहीं करता कि वो मुफ्ती साहब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये भी पता होगा कि मुफ्ती साहब का सेंस, मुझे मुफ्ती साहब का नहीं बोलती तो मैं चुप रहूं। सुने पप्पू, मुझे बता तेरे वालिदैन हिंदू थे कि नहीं? यार फोर फादर जो पीछे आबाओ जिदाद कहते हैं कि अब हिंदुस्तान से एक साथ मनु तो नहीं दबा। ठीक हो गया, तेरे वालिदैन हिंदू थे, ठीक है, वो ठीक हो गया, बस मुझे जवाब मिल गया। मिर्जा जूनियर जेलमी के वालिदैन भी हिंदू थे। कहता है मंगोलों की औलाद हो, तो फिर वो ज़ाहिर मंगोल काफर ही थे ना, आगे उन्होंने इस्लाम को बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल बात खत्म हो गई। अब रही बात हमारे वालिदैन हिंदू नहीं थे, ठीक है, तुम लोगों ने अपनी सफाई दे दी, हमने अपनी सफाई दे दी। नाल मिल जाओ ना, तुसी को सहाबा दे लड़ी चो जरा माइक म्यूट कर, मुझे बात कंप्लीट करने दे। कह दे वो बात तो कंप्लीट करने दे यार, तू किंज दा बंदा है यार। पप्पू मलिक, अगर आपने एक दफा और म्यूट खोला विदाउट मुफ्ती साहब लेट हिम फिनिश, मैं आपको कॉल से उतार दूंगी। बात तो तहम्मुल से सुनते हैं। तूने कहा जी तुम्हारे वालिदैन हिंदू थे, हमने अपनी सफाई दे दी है कि हमारे वालिदैन हिंदू नहीं थे। तुमसे जब पूछा तुमने कहा ठीक है मेरे वालिदैन हिंदू थे, मिर्जा जूनियर जेलमी के वालिदैन हिंदू, बात खत्म होगी, बस दोनों स्टेटमेंट आ गई हैं, बस इसके ऊपर जिरा कैसी? अगली कोई बात करनी है तो करो। मुफ्ती साहब मैंने बता दिया, अपना भी जेलमी का भी बता दिया। आपको अपने माँ बाप का पता था या आपको पता ही नहीं है? कौन थे वो, कौन नहीं थे, बताए जरा। अरबी थे तो मैं फिर आगे ईरानी थे, अफगानी थे, हिंदुस्तानी थे, कौन गोरे थे, कौन थे? जिरा करोगे तो आजो मैदान में थे कौन, खतरा भी है या नहीं है? लंगोटे कस लो तो फिर आजो मैदान में करनी है। दसो कौन है, बताओ कौन है, किधर? जी जी करते हैं, जी करते हैं सर, करें। हाँ तो देखो, तुमने कह दिया कि मेरे वालिदैन हिंदू हैं, वो बुतों के पुजारी थे, और मिर्जा जूनियर जेल में बुतों का पुजारी और मजूसी खानदान से ताल्लुक रखता है। मैंने कह दिया कि मैं अपनी बात अब बताता हूँ, हम सैयदजादे हैं, और सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, जो मतलब हमारे अबाओ अजदाद थे, वो तबलीग के लिए पहुंचे यहाँ हिंदुस्तान, तो हम तो उनकी औलादे हैं, हमारे अबाओ-अजदाद तो नहीं थे हिंदू। अगर साबित हो जाए कि मैं अपनी बात कर रहा हूं अपनी, कि मेरे वालिदैन हिंदू थे, तो फिर मैं सैयद ना रहा, फिर सियासत किस चीज की? समझ आई कि नहीं? ये अकली तौर पे तुम्हें मैं बता रहा हूं, और ये अकली और नकली दोनों तौर पे ये ऐसे है कि सैयदजादे खालस जो है वो अरबों की औलाद है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा नसब जाता है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हसनी भी सैयद हूं और हुसैनी भी सैयद, तरफैन, नजीबु तरफैन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। चल कर अगली बात कर। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप सैयद मेहमान मैंने मान लिया। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप में और जो सैयदों में और जो नॉर्मल सुन्नी मुसलमान है, कोई फर्क है? आप हमसे अफजल हो या बराबर हैं? आप ये बताएं। अरे ये अलग टॉपिक है, ये हमारे मौजू से कोई तल्लक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कादियानियों के मौजू के ऊपर बात करने के लिए बैठा हूँ, उस मौजू पे बात चलने दो तो बेहतर है। तुम बीच में आके कब का, ये तकरीबन कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है? 1 घंटा 13 मिनट हो गए हैं मुझे, तो यब डाल के बैठे हुए तुम। मैंने बड़ा गौर किया कि जब मैं जज्बात के रूम में बह गया था और बोल गया था, बीच में तुम आ जाते हो और मौजू से हमें हटा देते। हम भी कुतुब शाही अवान है, शायद आपकी और हमारी नस्ल पीछे से एक ही मिलती है। जब भी मतलब मैं कादियानी हो के मौजू के ऊपर बात कर दो, तुम मुझे आके मौजू से हटा देते हो। ड्रामेबाजी तुमने लगाई हुई है पिछले 2-3 दिन से। कुतुब शाही अवान ते मरज़ाइयां दे नौकर हैं, क्या बात है। और यार सियाने कहते हैं ना, काफिले गुजरते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तुम जैसे कुत्ते आएंगे क्या करेंगे, तुम्हारा काम है भौंकना। थले जाके ना भौंक, जिन्ना भौंक नहीं मर्ज़े
ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਆਹੋ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੋ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਆਤਫ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। सॉरी सॉरी ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸੁਬਰ ਆ ਖੈਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੌਂਕ ਲਿਆ। ठीक है सबको अस्सलाम वालेकुम। खैर वालेकुम सलाम। मिसाल देके गया है इंजीनियर की, मिर्जा इंजीनियर जो है ना वो जलम वाला, वो उसकी मिसाल देके गया है भाई वो कुत्ते भौंकते रहते हैं। और ये मिर्जा कादियानी की कि ये कुत्ते भौंकते रहते हैं और ये भौंकते रहेंगे क़यामत तक या जब तक इनका ये फितना है। लेकिन जो मैं आज शायद पहली दफा आया हूँ या दूसरी दफा आपकी ब्रांच पर, तो बड़ी माजरत है क्योंकि हम मजहबी लोग हैं, तो आप समझ सकती हैं कि वो फिर हमारे लिए बड़े मामलात होते हैं और बड़े किस्म मुफ्ती के। साहब ऐसी कोई बात नहीं है, यू मोस्ट वेलकम एनी नहीं टाइम। मैं एक बात, ओहो कोई मेरी बात तो नहीं, आप मेरी बहन खुशनसीबी, लगती आप है। मैं एक माशाल्लाह बात साथ करने में लगा था, बैठते हैं। मैं एक बात करने लगा था कि अब जब मैं आऊँ ना, कोशिश करें आप मेहरबानी कि कोई तस्वीर कोई और लगा लें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। जी 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 मैं भी करती वो हूँ, ना सॉरी। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अभी ये देखें यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोडिंग होगी, तो वो फिर ना कई लोग फिर बीच में सारे नहीं होते एक जैसे, वो फिर कई मोतारजीन इतराज करने वाले भी बीच में आ जाते हैं। तो ये बात है, वो हिकमत अमली के तहत कह रहा हूँ, तो ये बात है। ठीक है जी, बकाया कोई मसला नहीं, मर्द भी तबलीग करें, औरतें भी करें, कोई नहीं अपने अपने तई अपने अपने मजाज के मुताबिक। तो दीन किसी की जगीर नहीं है, हर एक करे, हर एक दीन का मुहाफिज है, हर एक दर्द दिल रखता है, ये दर्दमंद मुसलमान है, लड़कियां भी लड़के भी। तो अपने अपने तई करें तबलीग, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं है, इन फितनों को बेनकाब करें। हाँ, तो बहरहाल मुझे इस लिहाज से खुशी हुई है कि इसी टिकटॉक के ऊपर लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, तो आप एक इस्लामी ब्रांड लगा के बैठी हैं, ये खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। और दोस्तों को चाहिए कि ऐसे मर्द और जन दोनों की तारीफ करें, उनके अच्छे अमल के ऊपर उनकी तारीफ करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ना अब जाऊंगा, तो आप साहिबान मजलस लगा के बैठिए, तो बड़े बड़े प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप मजलस लगा के बैठिए। तो मेरा अपना एक मौजू है भाई, रद्दे कादियानी, बस। हाँ, उसकी जद के अंदर फिर जो भी आएगा रगड़ा खाएगा, वो रगड़ा लग जाना है उसको। वो तो फिर ला दो मेरा। हाँ ठीक, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब ला दो मेरा। वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। ओके जी सर, शुक्रिया। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।